میں آپ کا جو ایک بڑا ایز این ایوڈ ریڈر میں آپ کی کالمز کو بڑا کلوزلی دیکھتا ہوں. آج بھی جو آپ کا کالم چھپا وہ بڑا دلچسپ ہے, اس میں بڑی ڈیپتھ ہے, اور آپ نے جو عین ہے اس کی اہمیت کو بھی بتایا ہے, چاہے وہ تحریک انصاف ہو چاہے حکومتی نظام ہو. بڑا اچھا, آپ کے اسیسمنٹ میں یہ پچھلے کچھ دنوں کے اندر جو کچھ ہوا ہے, جو پاکستان تحریک انصاف کی فرسٹریشن ہے اور جو طاقت ملی ہے پاکستان کے اس نظام کو, یعنی اسٹیبلشمنٹ کو, چاہے وہ بھارت کے ساتھ کانفلکٹ کے بعد ہو, پاکستان کے فیلڈ مارشل کی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد ہو, کہاں ہیں معاملات آج کھڑے ہوئے آپ کے نزدیک؟ نہیں، یہ تو دیکھیں بالکل آپ نے درست کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو جو کہ پاپولر بھی نہیں تھی مختلف ماضی کی وجوہات سے، حال کے واقعات کی وجہ سے، اور دوسری طرف یہ تھی کہ اس کی ساکھ بھی جو تھی وہ اچھی نہیں تھی. لیکن جنگ نے جس میں ایک بالکل مختلف حالات کر دیے، کیونکہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی ساکھ بہت بہتر ہوئی انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی. اور اس کے بعد یہ جو انپریسیڈنٹڈ میٹنگ ہوئی ہے، لنچ میٹنگ امریکہ کے اندر، اس نے بھی معاملات جو ہے یہ سمجھنے میں کہ ہم کہیں بین الاقوامی منظر میں، جہاں ہم ایک نقطہ بھی نہیں رہے تھے افغان جنگ کے بعد، کہ کہیں ہم میٹر کرتے ہیں، اور اس میٹر کرنے میں ہم خطے میں بھی اور دنیا میں بھی اپنا ایک نام اور اپنی ایک ساکھ رکھتے ہیں. تو یہ ایک ریوائول ہوئی. دوسرا، ہمارا شروع سے پرابلم ہے انڈیا کے ساتھ. جب سے پاکستان بنا ہے تو ہم جو بھی کوئی چیز اپنی کرتے ہیں وہ تقابل میں کرتے ہیں کہ انڈیا کہاں کھڑا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، امریکہ انڈیا کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، ہمارے ساتھ کیسے تعلقات. تو اس میں بھی ہم بہتر پرفارم کر رہے ہیں. لیکن اس کے ظاہر اثرات پاکستان پر ہوں گے. یہ جو دونوں واقعات ہوئے ہیں، پہلا تو وہ ایک اوور آل جو ہے وہ منظر یہ ہے کہ سیاسی قوتیں، چاہے وہ گورنمنٹ ہے چاہے اپوزیشن ہے، دونوں ہی کمزور ہوئی ہیں، اور اوور آل اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہوئی ہے. لیکن ایک دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو گورنمنٹ، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، دونوں کو جو خطرہ تھا اپوزیشن سے وہ کم ہوا ہے. اب پرابلم صرف یہ ہے کہ کہیں اس طاقت سے جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو تو ضعف پہنچے گا، ڈیفینیٹلی پہنچے گا، اور ان کی پوزیشن آف اسٹرینگتھ جو ہے وہ پوزیشن آف ویکنس ہو گئی ہے، اور کوئی بھی انہیں ڈیل جو پہلے کبھی بہتر مل سکتی تھی اب آہستہ آہستہ بارگیننگ پوزیشن ان کی بہت ویک ہو گئی ہے. اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب کے لیے بھی نئے چیلنجز پیدا ہو گئے ہیں کہ جب ایک بہت اچھی ساکھ والی اسٹیبلشمنٹ ہوگی، طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہوگی، ہائیبرڈ نظام ہوگا، تو اس میں جو سپیس ہے پہلے ہی بڑی کم ہے، تو اس میں کہیں مزید سپیس جو ہے وہ کم نہ ہو جائے. اور پھر آگے جا کے جس طرح سے مخالف حلقے اس وقت پاکستان میں یہ کہہ رہے ہیں جی 27 ترمیم میں یہ لے لیا جائے گا، یہ اختیار، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی حقیقت ہے، بلکہ عوام کو اور حقوق ملنے چاہیے. اور جو ہائیبرڈ نظام ہے اس کو مضبوط ہونے کے بعد سیولین سپیس کو بڑھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ سیولین سپیس جو ہے اس کو اور کم کیا جائے. تو یہ میرا اوور آل ایک نظریہ ہے ان حالات کے بعد. عبدالرحمن صاحب، یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس بات کا ذکر آپ نے بھی کیا ہے کہ اس وقت جو مرکزی شخصیت اگر کوئی ہے جن کی چلتی ہے وہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ ہیں، عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہرحال جو کانڈوئٹ رہے ہیں، یعنی جو کوئی اگر کوئی تعلق اسٹیبلشمنٹ سے کسی طرح سے عمران خان صاحب کے پیغامات یا کوششیں وہ گنڈا پور صاحب کرتے رہے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ گنڈا پور صاحب بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور معاملات درست نہیں ہوئے. کیا علیمہ خان صاحبہ ایسی شخصیت ہے کہ آج نہیں لیکن کسی سٹیج پر وہ عمران خان صاحب کے لیے کچھ اچیو کر سکتی ہیں آپ کی نظر میں اس اسٹیبلشمنٹ سے، اس نظام سے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں. عمران خان نے جو پہلا طریقہ اختیار کیا تھا نا، یہ بیرسٹر گوہر علی کو اور
जो गंडापुर साहब को, जी मेरा ख्याल है कि ये मोस्ट इफेक्टिव तरीका था अगर कोई संजीदा मुज़ाकरात करने हैं। गंडापुर साहब और गौहर अली दोनों, मैं समझता हूं कि इमरान खान से बहुत मुखलिस है, बिल्कुल। लेकिन पीटीआई का अलमिया वो एक इस तरह की पार्टी बन चुकी है कि हर एक पे, अपने पे भी उन्हें शक है। जितनी गालियां पीटीआई के लोगों को पीटीआई के लोग देते हैं, इतनी तो शायद मुखालफों को नहीं देते। तो अब जब हर एक पे आप डाउट करेंगे, बैरिस्टर गौहर पे भी डाउट करेंगे, जिनका स्वाय इमरान खान की नॉमिनेशन के वो तो कभी अपना क्लाउड कोई रखते ही नहीं है। और गंडापुर जो है, ये ठीक है कि उनके एस्टेब्लिशमेंट से मामलात को तय करते हैं एज चीफ मिनिस्टर, लेकिन मुझे अंदाजा है कि वो अपनी हर खुफिया मीटिंग में भी इमरान खान के साथ मामलात को ठीक करने की बात करते हैं। लेकिन जब पीटीआई को उन पे भरोसा ही नहीं है इन लोगों पे, और इस दफा खान साहब की जो बहन है अलीमा खान वो बाहर आई, तो सबसे पहले मैं सुन रहा था तो उन्होंने सबसे पहला पॉइंट ये दिया कि सोशल मीडिया ने बड़ा रोल अदा किया। यानी उसका मतलब डायरेक्टली ये था कि जो गंडापुर साहब को जो गालियां पड़ रही हैं ये बड़ी अच्छी हैं। तो जब पार्टी में ये हाल हो तो अलीमा खान साहबा भी मुज़ाकरात करके देख लें, यही हाल सोशल मीडिया इनका भी करेगा। अच्छा, आपके नजदीक ये अभी आपने जो गुफ्तगू फरमाई राय साहब, फिर रास्ता आप, हमने देखा है माजी में, हमने शहीद बीबी के मामलात देखे, हमने मियां नवाज शरीफ साहब के मामलात देखे, अब बुरे हालात, जलावतियां, सजाएं, केसेस, लेकिन हालात बदले भी। इमरान खान साहब के लिए वो, जिसे हम कहते हैं कैटलिस्ट, क्या साबित हो सकता है? आमतौर पर तो ये होता है कि ये एस्टैब्लिशमेंट की ताकत पीक कर रही है, लेकिन जब वो ताकत कम होगी तो फिर कोई निगोशिएटिंग टेबल भी बेहतर सजेगा। लेकिन यहां तो अभी तो पावर पीक कर रही है और कुछ आपको नजर नहीं आ रहा, तो फिर क्या कैटलिस्ट होगा जो खान साहब के लिए कोई सियासी स्पेस क्रिएट करेगा या उनको टेबल पर बेटर सीट एट द टेबल जिसे हम कहते हैं वो दिलवाएगा? सर में सबसे पहले तो जो शुरू से पीटीआई का प्रॉब्लम है, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी मुसलसल चला आ रहा है कि वो हकीकत पसंदी की तरफ नहीं आ रहे। वो ख्वाबों की दुनिया में है कि हम इसको गिरा लेंगे, ये जंग जो है इससे हमें फायदा हो जाएगा, ट्रंप आ जाएगा तो उससे हमें फायदा हो जाएगा, बस ये होने वाला है, ये हमने तहरीक चला ली तो हम हुकूमत को गिरा लेंगे। तो ये तमाम अब तक के जितने फैक्टर्स हैं हमने देखे हैं सारे। ट्रंप साहब के आने पे किस तरह से इंतजार किया जा रहा था, ठीक है, इसी वो उल्टा पड़ गया। वो तो अभी सदर ट्रंप ने जो मीटिंग थी उसमें इमरान खान का नाम नहीं लिया, पाकिस्तानी साइड ने इमरान खान का नाम लेके तो हालात बताए हैं, और ट्रंप साहब मुस्कुराते रहे हैं, उन्होंने कोई उसकी हमायत में एक लफ्ज नहीं कहा, बल्कि जनरल साहब की हमायत में जो है वो बोले हैं। तो बुनियादी बात यह है कि जब तक आप रियलिस्टिक देखिए, अगर तो कोई कॉम्प्रोमाइज करना है तो कॉम्प्रोमाइज के लिए उन्हें जो ये एक हार्ड लाइन है ना, जो कि जाली है, हकीकत में तो वो सारा कुछ किए हुए हैं, उसी असेंबली में बैठे हुए हैं जिसको वो नहीं मानते, उसी रिजर्व सीटों को वो मान के उस पर तस्लीम किए हुए हैं। उस रोज हर रोज कौमी असेंबली में मीटिंग करते हैं गवर्नमेंट के साथ, उसी शहबाज शरीफ के साथ रोज बैठ के बातें करते हैं। सिर्फ मान ही नहीं ना सोशल मीडिया पे हम नहीं मानते, ठीक है, आपने इस सिस्टम को मान लिया हुआ है, आप इस सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं, इसी सिस्टम के अंदर आप चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, इसी सिस्टम के अंदर आप बेनिफिट ले रहे हैं, इसी के अंदर आप तनख्वाहें ले रहे हैं, ये सब कुछ तो आपने किया हुआ है। और अगर आपका जो क्लेम टू फेम है वो क्या है कि इस इलेक्शन में धांधली के बावजूद हमने ये इतनी सीटें ली हैं, तो भाई इतनी सीटें ली हैं तो इट मीन्स के इन ए वे आपने उसको तस्लीम कर लिया। तो सब कुछ तो आपने तस्लीम किया हुआ है, सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है, और उसका फिर नतीजा ये है कि जब आप ये सिस्टम नहीं मानेंगे तो जितनी देर तक सिस्टम में ताकत है तो वो रेजिस्ट करेगा। तो इस वक्त तक उनकी ताकत सिस्टम की बढ़ती जा रही है और पीटीआई की कम होती जा रही है, इसलिए कोई मसालियत का कोई चांस नहीं है। और दूसरा जो होती है ना जी, जो हमेशा जो ताकतवर होता है ना, वो जो कमजोर होता है ना उसके साथ मुज़ाकरात करता है, लेकिन वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं करता।
बड़ी मुज़ाकरात करता है, वो कामयाब नहीं करता। अब हुकूमत मुज़ाकरात करेगी भी तो कामयाब नहीं करेगी। बड़ी बड़ी बहुत दिलचस्प बात है, और एग्जैक्टली ऐसे ही कि वो बात शुरू करेंगे लेकिन कंक्लूड नहीं करेंगे। राइट साहब, पीएमएलएन के अंदर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम कहीं है कि उनको है फिक्र हो कि हमारा बयानिया क्या है, तो हम हुकूमत में हैं, ताकत एंजॉय कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट का पावर हाउस हमारे साथ है, तो लेकिन बयानिया हम नहीं बना पाए, और आप भी मुतअद्दिद दफा इसका जिक्र कर चुके हैं। क्या उनको ये फिक्र है? क्योंकि फिर बादल नजर में तो जो हाइब्रिड निजाम जिसके जी 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 देखिए, उसमें भी पर्सनैलिटीज है ना। मगर मियां नवाज शरीफ तो रिटायर्ड पॉलिटिक्स मेरा ख्याल है कर रहे हैं। अगर जो उन्होंने कई दफा वादा किया कि मैं एक्टिव हूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, किया नहीं है उन्होंने अभी तक। ना पार्टी की कोई मीटिंग हुई है। शहबाज शरीफ सियासत करते ही नहीं है। अब रह गई सिर्फ और सिर्फ मरियम। अब मरियम जो है वो कोई 100 के करीब इनिशिएटिव्स तो ले चुकी हैं जी। लेकिन क्या ग्रास रूट पे कोई तब्दीली आई है? यस, इनके बारे में गुडविल जरूर बनी है, लेकिन मेरा ख्याल है पीटीआई का कोई एक वोट टूटा नहीं है अभी तक। ठीक है, तो डेफिनेटली एक परसेप्शन वाइज तो ठीक है, लेकिन रियलिटी में क्या है वो हमें तब्दीली नजर नहीं आती। और मेरा ये ख्याल है कि यूं ही एस्टेब्लिशमेंट को ये एहसास होगा कि वो स्ट्रांग हो गई है और उनके पार्टनर जो हैं शहबाज शरीफ या पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ये वीक हैं। और दूसरा ये है कि हमेशा कास्ट बेनिफिट जो है वो एनालिसिस किया जाता है। जिस तरह नून ये एनालिसिस कर रही होगी कि हम फौज के साथ मिलने से हमारा वोट बैंक हो गया, तो क्या फौज ये एनालिसिस नहीं करेगी कि नून को साथ मिलाने से हमें कोई पब्लिक सपोर्ट, कोई वोट बैंक, कोई वो नहीं मिला। हमें एक अल्टरनेट पॉलिटिकल लीडरशिप तो मिल गई है, लेकिन हमें जो जिस तरह पब्लिक सपोर्ट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलनी। और मुझे पता है कि जनरल आसिम मुनीर के जो हामी इस वक्त एक डेवलप हुए हैं नए, जो बराह रास्त उनके हामी है, वो पॉलिटिकल जो इस वक्त इनएक्टिविटी है और पॉलिटिकल रादर बेअमली है उस पे बहुत नाराज हैं। और वो ये समझते हैं कि जो नून को जनरल साहब को देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे।